Three numbers are in AP and their sum is 21. If 1, 5 and 15 are added, अगर वो numbers में 1, 5 and 15 add करते हैं, then the resulting numbers will be in GP. The numbers are, okay. So option method से हम try out करते हैं. Option A check करते हैं. 5, 7, 9. अब 7 minus 5 is 2, 9 minus 7 is also 2. तो यहाँ पे common difference exist हो रहा है 2 का. So this is an AP. Next का क्या है, इनका sum 21 होना चाहिए. तो अगर ये add करते हैं तो yes 12 and 9 that is 21. ये condition भी satisfy होता है. अब 1, 5, 15 ऐड करते हैं. So 5 में हम 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 6. Then 7 plus 5 will become 12 and 9 plus 15 that is 24. अब चेक करते हैं कि ये GP है या नहीं. Now 12 divided by 6 is 2. 24 divided by 12 is also 2. So yes, we are getting a GP with common ratio 2. So the correct answer is 5, 7 and 9. बाकी ऑप्शंस भी देखें वही टर्म्स है लेकिन आगे पीछे दिए हुए हैं और ना तो ये AP में है ना ये AP में है. So the correct answer is option A. The sum of 1 plus 1 by 3 plus 1 by 3 square plus 1 by 3 cube and so on is. अब यहाँ पे एक करेक्शन होना चाहिए था. Actually this should be sum up to infinity. तो ये इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट टर्म है 1 एंड कॉमन रेशियो अगर हम देखें t2 डिवाइड बाय t1 सो कॉमन रेशियो विल बी 1 by 3 which is less than 1. So we have to find s infinity. अब s infinity का फॉर्मूला होता है a upon 1 minus r. So a is 1 upon 1 minus 1 by 3. So that is 1 upon ये आएगा 2 by 3. इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं so the answer is 3 by 2 which is option B. The sum of infinite series 1 plus 2 by 3 plus अभी 4 by 9 को हम लिख सकते हैं as 2 by 3 का square and so on up to infinity. अब यहाँ पे एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है सो या ज्योमेट्रिक सीरीज है. सो a is 1 that is first term. Common ratio is 2 by 3 by 1 that is 2 by 3 which is less than 1. तो हम यहाँ पे s infinity ढूंढ सकते हैं using the formula a upon 1 minus r. So a is 1. नीचे आएगा 1 minus r. r is 2 by 3. So that is 1 upon 1 by 3. So final answer हमारा आता है 3 which is option B. The sum of first two terms that is S2 of a GP is 5 by 3 and sum to infinity is 3. The common ratio is. अब sum to infinity दिया है so obviously the common ratio has to be less than 1. So पहले तो हम Sn का फॉर्मूला लिखते हैं for r less than 1. So that is a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r and then S infinity का फॉर्मूला होता है a upon 1 minus r. अगर ये दोनों को हम डिवाइड करते हैं Sn and S infinity को, ये अगर हम डिवाइड करें तो a and 1 minus r, a and 1 minus r ये कैंसल आउट हो जाता है. सो जो रह जाएगा वो है 1 minus r raised to n. एंड नाउ वी हैव दीज वैल्यूज. सो यहाँ पे आ जाएगा s2 upon s infinity will be 1 minus r raised to 2 that is r square. अब s2 की वैल्यू है 5 by 3. ये है 3 and this is 1 minus r square. So this will be 5 by 9. So 5 by 9 is
1 minus r square. So r square is equal to 1 minus 5 by 9, which is 4 by 9. तो अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं so r की वैल्यू आती है प्लस और माइनस 2 by 3. So we have two possibilities. It could be option B or option C. So yes, the correct answer is option B or option C. यहाँ पे actually option देना चाहिए था. It's B or C. तो फिर हम option D select करते हैं. So yes, any one of them is okay. So 2 by 3 or R is minus 2 by 3. If P, Q, R are in AP and X, Y, Z are in GP, then the value of X raised to Q minus R into Y raised to R minus P into Z raised to P minus Q is. अब यहाँ पे हम पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड की कुछ वैल्यूज अज्यूम करके देखते हैं. सो सपोज वी टेक दीज वैल्यूज एज 1 2 3. तो ये तो कॉमन डिफरेंस 1 वाला एपी हो गया. एंड सपोज इसकी वैल्यूज लेते हैं 1 2 एंड 4. ये कॉमन रेशियो 2 वाला एक जीपी हो गया. Let us substitute all these values. So these three are in AP and these three are in GP. Let us make the substitutions. X is 1 raised to 2 minus 3 into Y is 2 raised to R minus P, that is 3 minus 1 into Z. Z is 4 raised to P minus Q, that is 1 minus 2. ये सिंप्लीफाई करते हैं तो ये रहेगा 1 रेज टू माइनस 1. ये आएगा 2 स्क्वायर एंड दिस विल बी 4 रेज टू माइनस 1. तो दिस विल बी 1 अपॉन 1 इंटू 2 स्क्वायर इज 4 और इसका रेसिप्रोकल 1 बाय 4. ये तो कैंसिल आउट हो जाता है. तो फाइनल आंसर हमारा आता है 1. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. The sum of three numbers in GP, तीन numbers दिए GP में जिनका sum है 70. If the two extremes are multiplied by 4, extremes यानी the first and the third term, इनको अगर हम into 4 करते हैं and the mean यानी जो middle वाला number है उसको अगर हम into 5 करते हैं, then the products, ये जो तीन प्रोडक्ट वैल्यूज मिलेगी, दे मस्ट बी इन एपी. सो द नंबर्स आर, लेट अस चेक. ऑप्शन ए चेक करते हैं. 12 18 एंड 40. नाउ 18 by 12 that is 3:2, ये रेशियो आता है. एंड 40 by 18 that is not 3:2. तो कॉमन रेशियो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होता है. So these terms are not in a GP. So option A is ruled out. अब ऑप्शन बी चेक करते हैं. ऑप्शन बी है 10 20 40. 20 by 10 that is 2. 40 divided by 20 is also 2. So yes, this is a GP with common ratio 2. इनका सम 10 plus 20 30 plus 40 70, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है. एक्सट्रीम्स को into 4 करते हैं. So 10 into 4 is 40. 40 into 4 is 160 and middle वाले term that is mean को into 5 करना है. So that is 100. अब यहाँ पे देखिए 100 minus 40 is 60. 160 minus 100 is also 60. So yes, common difference हमें 60 मिल रहा है. So these three numbers are in AP. तो yes, all conditions are satisfied. तो आंसर है ऑप्शन बी. लेकिन अगर हम देखें ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी में ये भी एक जीपी है. इफ यू सी ऑप्शन सी में हमें इसका रिवर्स ऑर्डर दिया है 40 20 10. दिस इज अ जीपी बट विथ कॉमन रेशियो हाफ. ये सारे कंडीशंस सेटिस्फाई होंगे. यहाँ पे ये आ जाएगा 160, फिर ये आ जाएगा 100, then this will be 40
और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मिलेगा -60 का। तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर बी या सी दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। तो ऑप्शन डी अगर हम मॉडिफाई करें बी और सी, देन दैट वुड हैव बीन द आंसर। इसके दो आंसर्स आते हैं, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी, तीन नंबर्स एपी में है, उनका सम है 15 और आगे दिया है इफ 1 4 एंड 19 अगर ऐड करते हैं वो तीन नंबर्स में, देन द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन जीपी। तो जो रिजल्टिंग नंबर्स होंगे ये ऐड करने पर, then they would form a GP. Then the numbers are, let us go by the option method, 26, 5 and -16. Now 5 minus 26 is -21, minus 16 minus 5 is also -21. तो yes, common difference तो exist हो रहा है -21 का, so it is an AP. सम 15 देखते हैं, 26 प्लस 5 31, 31 माइनस 16 इज 15, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। 1 4 19 ऐड करते हैं, इसमें अगर 1 ऐड किया तो ये रहेगा 27, इसमें 4 ऐड करेंगे तो 9 और इसमें अगर 19 ऐड करते हैं तो 3। So 9 by 27 is 1 by 3, 3 by 9 is also 1 by 3. तो yes, एक GP बन रहा है with common ratio 1 by 3. So option A is the answer. अब ऑप्शन बी एक बार वेरीफाई कर दें, नंबर्स अलग हैं। So let us check option B as well. 2, 5 and 8. अब 5 minus 2 is 3, 8 minus 5 is also 3. So yes, common difference 3 है. So these are in AP. Sum 2 plus 5 7 plus 8 is 15. ये भी satisfy हो रहा है। 1 4 19 ऐड करते हैं, 1 ऐड करेंगे तो 3, 4 ऐड करेंगे तो 9 और इसमें 19 ऐड करेंगे तो 27. So 9 divided by 3 is 3, 27 by 9 is also 3. So common ratio यहाँ पे 3 आ रहा है। तो ऑप्शन बी भी इसका एक सोल्यूशन हो सकता है। So it could be either option A or option B. X, Y, Z are in GP. तो अगर ये GP में है, so therefore we have y square will be equal to x into z. और हमें दिया है x raised to p is equal to y raised to q is equal to z raised to sigma. Then 1 by p, 1 by q, 1 by sigma are in. ओके तो सपोज इनको हम इक्वल टू के ले लेते हैं। सो इफ x रेज टू p इज इक्वल टू k, सो x ये p अगर इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, x विल बी k रेज टू 1 बाय p। पावर है यहाँ पे p, इस तरफ जाके वो रूट हो जाएगा, सो 1 बाय p हो जाएगा। वैसे ही y रेज टू q इज इक्वल टू k, सो वी हैव y इज इक्वल टू k रेज टू 1 बाय q एंड z रेज टू सिग्मा इज k. So z will be k raised to 1 by sigma. अब ये रिलेशन हमारे पास है x y z का, y square is equal to x into z. Now we just substitute the values. Y is k raised to 1 by q इसका square. Then x is k raised to 1 by p. Z is k raised to 1 by sigma. सो ये आएगा k रेज टू 2 बाई q इज इक्वल टू, ये पावर्स हम ऐड करते हैं यूजिंग इंडाइसिस, दिस विल बी 1 बाई p प्लस 1 बाई सिग्मा. सो फाइनली वी हैव 2 अपॉन q इज इक्वल टू 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन सिग्मा. दिस इज ऑफ द फॉर्म 2b इज इक्वल टू a प्लस c. तो अगर 2b इक्वल टू a प्लस c होता है, then we say a b c are in AP. So therefore we have 1 by p, 1 by q and 1 by sigma. They are in AP because it is of this form, 2b is equal to a plus c. Then we say a b c are in AP.
तो यहाँ पे 1 by p, 1 by q, 1 by sigma are in AP. So the answer is option A. If the terms 2x, x plus 10 and 3x plus 2 be in AP, then the value of x is. तो इसे हम नाम दे देते हैं as A, B and C. So if A, B, C are in AP, we know that 2 times B is equal to A plus C. So 2 times, अब B है x plus 10, A is 2x and C है 3x plus 2. ये ब्रैकेट ओपन करते हैं. सो 2x प्लस 20 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 5x प्लस 2. ना 5x माइनस 2x, ये हो जाएगा 3x एंड 20 में से अगर हम 2 लेस करते हैं तो ये आ जाएगा 18. 3 इस तरफ डिवाइड कर देते हैं. सो 18 डिवाइड बाय 3 इज 6. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. If A is the arithmetic mean of two positive unequal quantities x and y and G is their geometric mean, then so suppose x की वैल्यू हम लेते हैं 2 and y की वैल्यू लेते हैं 8. तो इनका arithmetic mean जो होगा, that is A will be 2 plus 8 divide by 2. तो ये आ जाता है 5. इनका geometric mean, that is G ढूंढ लेते हैं. geometric mean will be root of 2 into 8, that is 16 का square root होता है 4. So we can clearly see that A is greater than G. So the correct answer is option B. The AM of two positive numbers is 40. तो arithmetic mean दिया है 40 and their geometric mean is 24. The numbers are, option A check करते हैं, 72 and 8. So 72 plus 8 divide by 2, तो ये आ जाता है 40. Geometric mean के लिए it will be root of 72 into 8. So 72 into 8 का square root आता है, ये 576 हो गया. तो square root is 24. तो yes, दोनों condition satisfy हो रही है. So the answer is option A. ऑप्शन बी में अगर हम देखें एवरेज, दैट इज एम, तो 40 आएगा, इसमें भी एम 40 आएगा. लेकिन ये 700 का रूट 24 नहीं होता है एंड 1200 ये मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 1200 का रूट भी 24 नहीं होता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. 3 numbers are in AP and their sum is 15. If 8, 6 and 4 be added, मतलब वो तीनों में अगर 8, 6 and 4 ऐड करते हैं respectively, then the resulting numbers must be in GP. Let us try with the options. Option A देखते हैं, 2, 6, 7. 6 minus 2 is 4, 7 minus 6 is 1. तो common difference नहीं है, तो ये AP नहीं है. तो ऑप्शन बी के साथ जाते हैं, 4, 6, 5. 6 minus 4 is 2, 5 minus 6 is -1. ये भी AP नहीं है, तो ऑप्शन बी is ruled out. ऑप्शन सी देखते हैं, 3, 5, 7. 5 minus 3 is 2, 7 minus 5 is also 2. तो yes, common difference 2 आ रहा है. फिर सम चेक करते हैं, 3 plus 5 is 8 plus 7 that is 15. ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है. अब इसमें 8, 6 and 4 ऐड करते हैं. सो 3 plus 8 is 11. 5 plus 6 is also 11. 7 plus 4 is also 11. So yes, this is a GP with common ratio 1. So all conditions are met. Hence the answer is option C. The sum of 4 numbers in GP is 60. तो geometric progression में 4 numbers है जिनका sum है 60 and arithmetic mean of first and last is 18. यानी first and last यानी कि जो fourth number, इनका अगर हम average लेते हैं, अगर arithmetic mean लेते हैं, then arithmetic mean आना चाहिए 18. The numbers are, let us check. Option A 4, 8, 16,
32. So this is clearly a GP with common ratio 4. यहाँ भी अगर हम देखें सेम नंबर्स है लेकिन ये GP में नहीं है, ये भी 8 नहीं, यहाँ पे 20 है तो ऑप्शन सी तो आएगा ही नहीं, यहाँ पे कॉमन रेशियो एग्जिस्ट नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ 20, तो होगा तो ऑप्शन ए होगा या नन ऑफ दीज। सो कॉमन रेशियो तो 4 है, इनको ऐड करते हैं, 4 and 8 is 12, 12 plus 16 plus 32 is 60, ये भी आ रहा है। फर्स्ट एंड फोर्थ का एवरेज लेते हैं, यानी 4 प्लस 32 का एवरेज लेते हैं, 36/2, ये भी 18, सो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। सो ऑल कंडीशंस आर मेट, हेंस द आंसर इज ऑप्शन ए। A sum of rupees 6240 is paid off in 30 installments such that each installment is 10 rupees more than the preceding one. तो अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका A है तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इससे 10 रुपीज़ ज़्यादा होगा, उसका अगला इंस्टॉलमेंट अगेन 10 रुपीज़ ऐड करेंगे तो इट विल बी A plus 20 and so on. So clearly this forms an arithmetic progression जिसका कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे 10 और 30 इंस्टॉलमेंट्स में इतना पेमेंट किया है, सो दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स एज 30, दैट इज सम ऑफ 30 इंस्टॉलमेंट्स एंड वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो हम एपी का एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। अब एसएन यानी S30 इज 6240, then n is 30 divided by 2, इधर आ जाएगा 2a, then 30 minus 1, so that is 29 into d, common difference है 10, ये simplify करते हैं, we have 6240 into 2 divided by 30, that is 416, so 416 is 2a plus 290, so we have 2a is equal to 416 minus 290 होता है 126, so a की वैल्यू होगी 126 divided by 2 which is 63। अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, so the correct answer is option D, none of these। The sum of 1.03 plus 1.03 square plus 1.03 cube and so on up to n terms is, now we can clearly see this is a geometric progression या geometric series in this case, जिसका first term है 1.03 and common ratio अगर हम देखें ये 1.3 से 1.03 टाइम्स बढ़ते जा रहा है, so r will be 1.03 and now we can use the formula for Sn। now r is greater than 1 तो Sn का जो फॉर्मूला आएगा वो होगा a into r raised to n minus 1 upon r minus 1। let us substitute, so 1.03 into 1.03 raised to n minus 1 upon 1.03 minus 1, तो यह जाएगा 1.03 into 1.03 raised to n minus 1 divided by अपॉन में आएगा 0.03, ये दो डेसिमल्स हम रिमूव कर देते हैं, तो फाइनली we will have 103 upon 3 into 1.03 raised to n minus 1. So the correct answer is option B. If x, y, z are in AP and x, y, z plus 1 are in GP, then अब अगर x, y, z अगर ये AP में है, then we have 2y is equal to x plus z or y is equal to x plus z upon 2 and x, y, z plus 1 are in GP, then we have y square
will be equal to x into z plus 1. ये हमने ये वाली कंडीशन यूज की है एंड दिस इज फ्रॉम कंडीशन 1. अभी y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो देयरफॉर वी हैव x प्लस z अपॉन 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा x z प्लस x. अब इसे एक्सपैंड करते हैं. सो एक्स स्क्वायर प्लस 2xz प्लस z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू एक्स जेड प्लस एक्स. अभी 4 इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 2xz प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा. सो 4xz प्लस 4x. अभी फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. ये xz टर्म इस तरफ ले लेते हैं. सो एक्स स्क्वायर, now 2xz minus 4xz is minus 2xz plus z square is equal to 4x. Now if you observe, the left hand side is actually a perfect square. ये perfect square है x minus z का. So this is actually x minus z the whole square. इसका expansion है ये, is equal to 4x. So this is what we get, and that is option A. The numbers x, 8, y are in GP and the numbers x, y, minus 8 are in AP. Then the value of x and y are. Let us go by the option method. यहाँ पे है -8 -8. सो अगर हम यहाँ पे -8 सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो -8 8 एंड -8 देखते हैं ये जी पे आता है कि नहीं. 8 divided by -8 is -1. -8 divided by 8 is also -1. Yes, so common ratio -1 आ रहा है. So yes, with this option we are getting a GP. हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं. -8 -8 -8. अब यहाँ पे एक्चुअली कोई डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं हो रहा है. सो इसे AP कहना पॉसिबल नहीं, बिकॉज आइडेंटिकल टर्म्स है. सो एक्चुअली दिस इज नॉट एन AP. सो ऑप्शन बी चेक करते हैं, बिकॉज AP के लिए एक कॉमन डिफरेंस होना चाहिए. यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है ही नहीं ये टर्म्स में. सो दिस इज डेफिनेटली नॉट एन AP. देन लेट अस गो विथ 16 एंड 4. यहाँ पे रखते हैं 16, फिर 8, फिर 4. Yes, 8 divided by 16 is half, 4 divided by 8 is half. तो यहाँ पे कॉमन रेशियो हाफ आ रहा है. सो यस, ये GP तो है. यहाँ पे 16, 4 एंड -8, ये देखते हैं ये AP बनता है या नहीं. 4 minus 16 is -12, -8 minus 4 is -12. तो there is a common difference, -12. Yes, तो ऑप्शन B राइट आंसर है. अब 8 8 चेक करते हैं. 8 8 8 दैट इज अ GP, दैट इज फॉर श्योर. लेकिन 8 8 एंड -8 वहाँ से AP नहीं बन रहा है. सो यस, द करेक्ट आंसर हैज़ टू बी ऑप्शन B. बुक में आई थिंक ऑप्शन A एंड B दिया है, बट यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं है. सो दिस इज डेफिनेटली, दिस कैन नॉट बी एन AP. फॉर AP टू exist, there has to be a common difference. तो ये doubtful लग रहा है ऑप्शन A क्यों दिया है आंसर में. So it has to be, answer should be rather option B. The nth term of the series 16, 8, 4 and so on, इसका nth term जो है that is Tn, यहाँ पे आना चाहिए था is. So Tn is 1 upon 2 raised to 17. Then the value of n is. Now this is clearly a GP with first term 16 and common ratio. ये terms half होते जा रहे हैं. So common ratio is half. So let us apply the formula for Tn. Tn is a into r raised to n minus 1. Tn दिया है 1 upon 2 raised to 17. A is 16. R है half
raised to n minus 1. Let us simplify this. ये 16 को हम लिख सकते हैं as 2 raised to 4 और इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 2 raised to 17 into 2 raised to 4. So 16 is 2 raised to 4 and here we have half raised to n minus 1. We 17 plus 4, that is 27. So this could be combined and written as half raised to 21 using indices is equal to half raised to n minus 1. Base same ho gaye, so we can equate the powers. So n minus 1 is equal to 21. So therefore n is equal to 21 plus 1. So that is 22, which is option C. The sum of n terms of a GP whose first term is 1, यानी यहाँ पे first term 1 दिया है, यहाँ पे आना चाहिए first term is 1 and common ratio is half. इसका sum of n terms यानी Sn हमें दिया है 1 127 by 128, then the value of n is. अब ये अगर हम इसे ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. So 128 into 1, that is 128 plus 127. So 128 into 1, 128 plus 127. So 128 plus 127. ये आता है 255 divided by 128. अच्छा, अब यहाँ पे r जो है that is less than 1. So we use Sn का formula where r is less than 1. So Sn is a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r. Sn है 255 upon 128. A is 1. 1 minus इधर आएगा half raised to n divided by 1 minus half. अब 1 minus half होता है half, इसको यहाँ पे multiply कर देते हैं. So we have 255 upon 128 into half is equal to 1 minus half raised to n. This will be 255 upon, now 128 into 2 is 256. 256 is equal to 1 minus half raised to n. Now let us simplify this. ये half इस तरफ ले लेते हैं, ये वाला term n term. So half raised to n is 1 minus 255 upon 256. Let us simplify this. So आएगा half raised to n is equal to, now 256 into 1, 256 minus 255, तो ये रहेगा 1 upon 256. अब ये एक्चुअली 2 का पावर है 2 raised to 2 into 2 3 4 5 6 7 8. So this is actually half raised to 8. This is 2 raised to 8. तो इसे हम लिख सकते हैं as half raised to 8. So base same आ गए. So यहाँ से हमें मिलेगी n की value as 8. Options check कर लेते हैं. Yes, so the correct answer is option B. If T4 of a GP is X, T10 is Y, and T16 is Z, then, now if you observe 4th term, 10th term, 6th term, तो यहाँ पे gap of 6 है, तो same interval पे जो terms आते हैं GP के, those are also in GP. राइट सी 4th फिर 10th फिर 6, ये 6 का गैप है यहाँ पे. सो एक्स वाई जेड ये भी जीपी में होंगे. सो इफ एक्स वाई एंड जेड, बिकॉज इंटरवल देखिए सेम है, गैप सेम है, सो जो टर्म्स आते हैं जीपी एट द सेम इंटरवल
they also form a GP. So X, Y, Z are also in GP. तो अगर x, y, z GP में है, then we have y square is equal to z into x या x into z. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन C. If x, y, z are in GP, then which of the relations is true? Now we know that if x, y, z are in GP, then y upon x is equal to z upon y. Therefore, if we cross multiply, we have y square is equal to xz. So the correct answer is option A. The sum of all odd numbers between 200 and 300. So the odd numbers between 200 and 300 है 201, 203, 205 and so on. और जो last होगा वो होगा 299. Now this is clearly an AP. इसका फर्स्ट टर्म है 201, इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो है 2, इसका जो लास्ट टर्म है TN दैट इज 299. सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढ लेते हैं TN के हेल्प से. नाउ वी नो दैट TN इज गिवन बाय A plus N minus 1 into D. So 299 is equal to 201 प्लस n माइनस 1 इंटू 2. ये इसमें से लेस कर देते हैं. 299 माइनस 201, सो दैट इज 98. 299 माइनस 201, यस 98 इज 2 इंटू n माइनस 1. इस तरफ डिवाइड कर देते हैं. सो वी हैव n माइनस 1 इज इक्वल टू 49. सो n इज इक्वल टू 50. लेकिन हमें पूछा गया है Sn. सो Sn का हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. सिंस वी हैव द फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये वाला फॉर्मूला n upon 2 into a plus tn. So we can go with this formula. n is 50. So 50 upon 2, a है 201 plus 299. ये कैलकुलेट कर लेते हैं. 201 plus 299 into 25, आंसर आता है 12,500, which is option C. The sum of all the natural numbers between 500 and 1000 divisible by 13 is. Okay, तो अभी 500 डिवाइड बाय अगर 13 करते हैं, ये आता है 38.46. सो 39 इंटू 13 अगर करते हैं तो पहला नंबर जो आएगा वो होगा 507, बिकॉज डिविजिबल बाय 13 है. सो अगर 500 को हम 13 से डिवाइड करते हैं तो 500 डिवाइड बाय 13, दिस इज 38.46. तो इसका नेक्स्ट यानी 39th नंबर से हम स्टार्ट करेंगे. सो 39 इंटू 13 इज 507. अब डिविजिबल बाय 13 है तो नेक्स्ट आएगा 520 एंड 1000 को डिवाइड करके देखते हैं. 1000 डिवाइड बाय 13 करते हैं. 1000 डिवाइडेड बाय 13 इज दिस इज 76.92. इसे ट्रंकेट कर देते हैं. सो 76 इंटू 13, लास्ट नंबर होगा हमारा 988. सो ये हमारा सीरीज बना. दिस इज एक्चुअली एन AP. इसका फर्स्ट टर्म है 507, दैट इज A इज 507. कॉमन डिफरेंस है 13. इसके नंबर ऑफ टर्म्स हम ढूंढ लेते हैं. TN लास्ट टर्म तो दिया हुआ है हमें, सो दैट इज 988. तो TN के हेल्प से हम n ढूंढ लेते हैं. TN होता है A प्लस n minus 1 into D, so that is 988. A is 507 plus n minus 1 into 13 is equal to 988. ये पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं. सो 988
माइनस 507 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 1, ये आ जाता है 38. सो n इज इक्वल टू 38. नंबर ऑफ टर्म्स मिल गए. अब हम इजीली Sn ढूंढ सकते हैं. सो Sn विल बी n upon 2 into a plus tn, because we have the first term and the last term. So let us calculate this. n is 38, so 38 upon 2. a है आपका 507 और लास्ट टर्म है 988. ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. 507 प्लस 988 into 38 by 2, that is 19. ये आता है 28405. 28405. Yes, so the correct answer is option A. If unity यानी कि 1 is added to sum of any number of terms of the AP, ये हमें एक AP दिया है 3, 5, 7, 9 and so on. इसके किसी भी Sn में अगर हम 1 ऐड करते हैं then the resulting sum is. तो चलिए S2 हम चेक करते हैं. S2 यानी sum of first two terms. ये आ गया 8. अब 8 में हम यूनिटी यानी 1 ऐड करते हैं तो 9 मिलेगा हमें. लेट अस टेक 3 टर्म्स. फर्स्ट 3 टर्म्स 3 प्लस 5 प्लस 7, ये आता है 15. अब इसमें 15 में अगर हम 1 ऐड कर दें तो हमें मिलेगा 16. अगर हम S4 लेते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स 3, 5, 7, 9, ये आता है 24. अब इस 24 में भी अगर हम 1 ऐड करते हैं वी गेट 25. सो बेसिकली ये सब टर्म्स अगर हम देखें ये परफेक्ट स्क्वायर्स हमें मिल रहा है. 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर. सो द आंसर इज ऑप्शन बी, अ परफेक्ट स्क्वायर. The sum of all natural numbers from 100 to 300. फ्रॉम बोला है यानी ये दोनों इंक्लूसिव है. विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 और 5. सबसे की वर्ड जो यहाँ पे जो है वो है और. तो पहले हम डिविजिबल बाय 4 चेक करते हैं. सो इट विल बी 100, फिर 104 एंड सो ऑन अप टू. यस, 300 भी डिविजिबल बाय 4 है. ये एक एपी बनता है जिसका फर्स्ट टर्म है 100, कॉमन डिफरेंस है 4 और इसका जो लास्ट टर्म है tn इज 300. यहाँ से हम पहले नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढ लेते हैं tn के हेल्प से. सो tn इज, अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करता हूँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 300. यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी. So 300 minus 100, that is 200. 200 divide by 4 is 50. Plus 1 करेंगे तो 51. तो here the number of terms is 51. तो यहाँ से हमें sum of terms मिल जाएगा Sn. So Sn will be, या इसे हम एक नाम दे देते हैं से S1 dash. तो फॉर्मूला अगर हम यूज करें Sn का, n अपॉन 2 इंटू a प्लस tn, a प्लस tn. तो यहाँ से हमें Sn मिलेगा 100 प्लस 300 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 2. ये आता है 10,200. अब ये आ गया डिविजिबल बाय 4. Then let us check divisible by 5. तो पहला नंबर आएगा 100, फिर आएगा 105 and so on, and yes 300 भी include होगा. This is also an AP जिसका first term है 100, then common difference है 5
एंड tn जो है tn है 300 द लास्ट टर्म. अगेन tn के हेल्प से हम n ढूंढ लेते हैं. tn इज a plus n minus 1 into d is equal to 300. So let us evaluate this. 300 minus 100, that is 200, divide by 5 plus 1. यहाँ पे n आ जाता है 41. So इसे हम नाम देते थे एस एन डबल डैश. सो अगेन एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे. सो n अपॉन 2 इंटू a प्लस tn. लेट अस सी हाउ मच वी गेट. ये हो जाएगा 400 इंटू 41 डिवाइडेड बाई 2. दिस इज 8200. अब डिविजिबल बाय 4 एंड डिविजिबल बाय 5 तो हमने ढूंढ लिया, बट इसमें ऐसे नंबर्स होंगे ये दोनों सम में जो डिविजिबल बाय 4 एंड 5 भी होंगे. सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दोज डिविजिबल बाय 4 एंड 5. ये तीसरा सेट ढूंढना पड़ेगा. डिविजिबल बाय 4 एंड 5. अगर 4 एंड 5 का एलसीएम लो तो वी हैव 20. सो दैट इज वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 20. तो यस 100 तो डिवाइड होता ही है 20 से. फिर नेक्स्ट आएगा 120 एंड सो ऑन. इवन 300 डिवाइड होता है 20 से. सो फिर से एक एपी बना जिसका फर्स्ट टर्म है 100. अब कॉमन डिफरेंस है 20. टी एन है हमारा 300. यहाँ से हमें एन मिल जाएगा. सो टी एन इज ए प्लस n minus 1 into d is equal to 300. Let us calculate this. So 300 minus 100 divide by 20 plus 1. So यहाँ पे आ जाता है n equal to 11. अब यहाँ से हमें एस एन सपोज ये ट्रिपल डैश कर देते हैं. इसका सम हमें ढूंढना है. सो एस एन का फॉर्मूला अगर यूज करें सो एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस टी एन. लेट अस कैलकुलेट दिस. तो ये हो जाएगा 400 इंटू 11 डिवाइड बाय 2. ये आता है 2200. तो जो हमारा फाइनल रिक्वायर्ड सम जो होगा द फाइनल रिक्वायर्ड सम. So the required sum will be, पहले हम एस एन डैश यानी डिविजिबल बाय 4 प्लस एस एन डबल डैश डिविजिबल बाय 5 माइनस एस एन ट्रिपल डैश. सो ये डिविजिबल बाय 4 था देन डिविजिबल बाय 5. इनको काउंट करेंगे एंड जो दोनों में काउंटिंग जिसकी डबल हो गई है दैट इज डिविजिबल बाय 20 उसे हम लेस कर देंगे. अब ये वैल्यू तो है इधर 2200. then this was 10200 and 8200. this is 10200 and this is 8200. let us calculate this. 10200 plus 8200 less 2200. तो आंसर आता है 16200. तो बेसिकली ये सेट का कॉन्सेप्ट है. इट इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है. सो 16200 is the answer. 16200. yes. So the correct answer is option C. The sum of all natural numbers from 100 to 300 which are exactly divisible by 4 and 5. Now they have asked divisible by 4 and 5. अब 4 and 5 का अगर हम LCM लेते हैं तो 20 आता है. So basically we have to find the numbers which are divisible by 20. अब 100 से अगर हम स्टार्ट करें तो yes 100 is divisible by 20. फिर 120 फिर 140 and so on up to 300. अब ये एक AP बनता है जिसका फर्स्ट टर्म है 100
कॉमन डिफरेंस है 20 और इसका लास्ट टर्म दैट इज Tn इज 300। इसके हेल्प से हम पहले n ढूंढ लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढ लेते हैं। Tn होता है a प्लस n minus 1 into d that is equal to 300। so यहाँ से हम n ढूंढते हैं, 300 minus 100 divided by 20 plus 1 यानी यहाँ पे n आ जाता है 11। so number of terms is 11 and now we can find Sn, sum of the 11 terms। so it is n upon 2 into a plus Tn। ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। so that is 400 into 11 divided by 2 is 2200। ऑप्शन चेक करते हैं, 2200 is option A। A person pays 975 rupees by monthly installment and each installment is less than the former by 5। मतलब अगर आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट A है तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 5 रुपीज लेस होगा, अगला इंस्टॉलमेंट और 5 रुपीज लेस होगा एंड सो ऑन। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 100 यानी आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी गई है 100। द टाइम बाय विच द एंटायर अमाउंट विल बी पेड इन यानी कितने इंस्टॉलमेंट्स में हमारा 975 पे ऑफ हो जाएगा। सो बेसिकली sum of all these installments that is Sn is 975। हमें n की वैल्यू पूछी गई है। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अगर हम देखें 5-5 रुपया लेस होते जा रहा है। सो कॉमन डिफरेंस इज -5 एंड दिस इज एन AP। तो AP का हम Sn वाला फॉर्मूला यूज करेंगे which is n by 2 into a plus 2a plus n minus 1 into d। Sn is 975, n we don't know, divide by 2, 2a यानी ये हो जाएगा 200 plus n minus 1 into d, d is -5। let us simplify this। 975 into 2 करते हैं तो ये आता है 1950। ये n यहाँ पे ये आएगा 200, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, -5n plus 5। so we have n into this is 205 minus 5n is equal to 1950। इसमें से 5 कॉमन फैक्टर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 41 minus n is equal to 1950। so n into 41 minus n if we divide by 5 करते हैं इसको, ये आता है 390। now let us try with the options 10 15 14। okay, let's try with 10। तो ये रहेगा 10 into 31, ये आता है 310। तो ऑप्शन A तो नहीं आएगा। next is 15, so this will be 15 into now 41 minus 15, 41 minus 15 is 26, 26 into 15 ये आ जाता है 390 एंड ऑप्शन C है 14, ये चेक करते हैं। so 14 into 41 minus 14 that is 27, so into 14 ये आता है 378। so yes, option B is the correct answer, that is 15। A person saved rupees 16,500 in 10 years. In each year after the first year, he saved 100 rupees more than he did in the preceding year. The amount of money he saved in the first year was। तो फर्स्ट ईयर में सपोज ने ए अमाउंट सेव किया है तो सेकंड में 100 रुपीज मोर यानी ए प्लस 100 फिर ए प्लस 200, 100 रुपये बढ़ते जा रहे हैं एंड दिस इज फॉर 10 years। तो दिस इज एक्चुअली एन AP जिसका फर्स्ट टर्म हमें ढूंढना है
कॉमन डिफरेंस 100 रुपीज़ का है, 100 रुपीज़ इंक्रीज होते जा रहा है, n है 10 और जो सम जमा हुआ है 10 ईयर्स में दैट इज S10 वो है 16,500। सो SN का फॉर्मूला हम यूज करते हैं। सो SN इज n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो ये आ जाएगा 16,500, n is 10 divide by 2, 2 times a plus 10 minus 1 that is 9 into d is 100. Let us simplify this. ये कट करते हैं तो इधर 5 आ जाएगा, so 16,500 then divide by 5, this will be 3,300 is equal to 2a plus 900. तो 3,300 less 900 is 2400 divided by 2। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें मिलती है as 1200। So 1200 is option C. At 10% compound interest per annum, a sum of money accumulates to 9625 in 5 years. The sum invested initially is, यानी हमें यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट है 9625, ये अक्यूमुलेट हुआ है 5 years में, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम और हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी प्रिंसिपल पूछा गया है। Now we know that for compound interest A is P into 1 plus R by 100 raised to N. So ये आएगा 9625 is P into 1 plus 10 by 100 raised to 5. तो यहाँ से हमें P की वैल्यू मिल जाएगी as 9625 डिवाइडेड बाय ये 0.1 प्लस 1 तो ये हो जाता है 1.1 रेज टू 5। सो ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं वी हैव 5976.367 दैट इज 37 अप्रॉक्स। So the correct answer is option A. The population of a country was 55 crores in 2005 and growth rate is 2%. The population in the year 2015 is, यानी initial population 55 crores दिया है, growth rate है 2% every year एंड 2005 से 2015 यानी 10 years में हमें ग्रोथ रेट फाइंड करनी है, रादर पॉपुलेशन फाइंड करनी है आफ्टर 10 years, दैट इज ए। नाउ वी नो दैट पॉपुलेशन ग्रोथ इज कंपाउंडिंग फॉर्म, वैसे भी यहाँ पे CI दिया हुआ है, सो हम ए का फॉर्मूला यूज करेंगे P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू N। सो P इज 55 CR into 1 plus R is 2 by 100 raised to 10। तो यहाँ पे ये वैल्यू है 10, then 55 into 1.02 raised to 10। So 1.02 into 2 3 4 5 6 7 8 9 10 into 55, ये आता है 67.04, बट ये क्रोज में आएगा। अब यहाँ तो सब आंसर जो दिए ये 1000 में दिए हैं, तो ऐसे भी आंसर नन ऑफ दीज ही होगा। एक्चुअली ये सम सॉल्व ना भी करें तो अभी लुकिंग एट द ऑप्शंस वी कैन क्लियरली सी 55 crores कैन नॉट बिकम 1000 और यहाँ पे ग्रोथ कहा गया है, सो ऑब्वियसली इनमें से कोई भी आंसर तो नहीं होगा। द करेक्ट आंसर हैज टू बी ऑप्शन D.